Sure. So those on YouTube, just share the audio on the screen. Suppose screen and audio properly are right. They'll write in a chat box. So let's start with the lecture. Okay. Sure. So बाकी सब कौन है तो let's start in a minute. Okay. So today we'll start with the next point, that is the AC fundamental. Okay. This topic is very important. So we have Ayush Kashit, Mukund Sunar, Amol, Pragati, Mandar, Krishna. So let's go other. Then Vaishali. So yesterday हमने lecture नहीं लिया था because I was busy in my academics. So yesterday का lecture हम आज लेने वाले. Okay. Just inform. Yesterday night only. So those who free, they can join the lecture. But those who are busy in some activity, they can join later. Okay. So that's why I'm conducting on a YouTube. So due to some reason, if किसी ने miss किया lecture, so they can join the lecture afterwards. But if you are present, you should be active in the chat box. You should be very focused on this slide, audio. Simultaneously, you can solve this. Okay. Today's lecture में sum नहीं है. It's a totally theoretical but conceptual. Okay. इसके बाद ये concept use करने के बाद we can apply this theory on the sums. So this topic is totally based on the mathematics. So now today's lecture is totally based on the fundamentals, theory part, conceptual part. Also we can use in the mathematical form in the next lecture. Okay. So being ready. So yeah, Aditya also, Gaurav also, Ayush Kashit, Harshvardhan. I think mostly sub joining. Let's wait for others. Let's start with the lecture. Okay. So it's good we are attending the lecture, even it's officially holiday. See, whenever there is a holiday, that does not mean कि आपको पूरा दिन you have to just celebrate. You can celebrate the whether it is a religious activity, whether it is the personal activity, whether it's a personal celebration, whatever it is. You should celebrate each and everything. But that does not mean कि आपको totally free होना. So do not make a habit कि मैं एक दिन कुछ नहीं किया. Other than physical condition, कि you are physically that much not comfortable. ये reason छोड़ के at least for some time, whether it is 10 minutes, 15 minutes, half hour, 1 hour, it's depend upon your strength, your capacity. Do some study. It's up to you whether you want to select any subject or not. कौन सा subject लेना है आपके ऊपर. Whether it is a maths, whether it is a science, whether it is the like electronics, computer, anything. It's up to you. ऐसे करो मत कि मैंने एक दिन कुछ किया नहीं. Holiday मतलब कुछ करना नहीं. ऐसे नहीं होता. See, कुछ भी critical condition आने तो दुनिया रुकती क्या नहीं. No one stop for anyone. What are the conditions? The war is going on between the Russia and Ukraine, but still, world shant beta hai kya? No, they are doing their activity. They have the personal comment, but they are not stopped their war. उन्होंने कुछ work stop किया क्या नहीं? कि अरे वहाँ पे कुछ तो work चल रही है, so why should we celebrate? नहीं. People are celebrating still. उनका काम छोड़ दिया क्या? So everyone should celebrate each and every activity that is required in the today's life, today's world. But you should also focus on your studies also. So थोड़ा सा time निकालना चाहिए. Even you are enjoying the holiday, सबके पास smartphone है, सबके पास PDF होता है, videos होते हैं. You can just revise all the things now. Even you can do the revision. Like maths, you can do the revision. कि क्या-क्या formulas है, सब basic formula. You can go through it. It just take a 10 minutes, 15 minutes, half an hour, 1 hour. So either 24 hours, you should take 1 hour plus. So पूरा दिन मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं होना चाहिए. Okay, so you should be that much focus on these studies. कि हाँ आज ठीक है आज एंजॉय करना है, बट इसका मतलब नहीं कि स्टडीज से टोटली सेपरेट हो. ऐसे यू शुड एंजॉय
आई विल सपोर्ट दैट एंजॉयमेंट, मैं भी करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करें, डू समथिंग, नहीं तो उसका हैबिट नहीं होगा। ओके, इसका हैबिट नहीं होगा। Sure. So we'll start with the lecture. So today's lecture is based on DC and AC. First, I'll tell you what is the difference between the DC and AC, and then we'll start the actual concept. जो theoretical concept is start. First of all, we'll see what is the DC and AC. Just wait. See. There are some example. Let's take some example like laptop. Other than laptop, we'll take some simple thing, that is a TV remote. So TV ka remote. Okay. Let's take one more example. Torch, or we can say wall clock. ये किस पे चलते हैं? Anyone? Just give the answer in the chat box. Today's lecture is a conceptual, so use a chat box and give the answer. So TV remote, torch, wall clock. मुझे भिंतीवरती आपण जे घड्याळ लावतो, टॉर्च, बॅटरी आपली, टीव्ही रिमोट, ये किस पे चलता है? What is the requirement for this function? What is the required? इसको क्या required है? Basic condition. So use chat box and just give the answer. For this three things, what is the requirement? क्या चाहिए? तीनों में कॉमन क्या है? क्या चाहिए इन तीनों को? Complete their work. Cell, किसी ने दिया सेल आंसर, लक्ष्मीकांत ने दिया सेल, और उसको क्या कहते हैं? अदर देन सेल, उसको क्या कहते हैं? सेल, इट्स अ बैटरीज. Everready, then Duracell. These are the some example of companies ना, कि जो सेल एंड बैटरी प्रोवाइड करते हैं. That is for the dry cell. So ये तो dry cell. It's a one time use ना. एक पेंसिल वाला मिलता है छोटा सा, एक बड़ा वाला मिलता है, ठीक है? सो करंट पर ठीक है, लेकिन which product we are using, cell, battery, dry cell, ऐसे होता है ना, this side is a positive, this side is a negative, ऐसे होता है ना. So this is dry cell जो हम लोग यूज करते हैं घर पे, Everready and Duracell, ऐसे सब एग्जांपल है. So without this thing they won't work. इनका फंक्शन होने वाला है क्या? Without this battery, समझो बैटरी खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं. इट्स अ वन टाइम यूज होंगे, नया लगाते हैं. So that means this thing are work on a batteries. Okay, उसको हमको सप्लाई चाहिए to complete the function. Let's take the next example. TV, okay, fridge, washing machine. इसके लिए क्या चाहिए? टीवी, फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन. यहाँ पे भी सेल लगाना है, एवरीबॉडी का, ड्यूरासेल का, टीवी के लिए. सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? इसके लिए क्या चाहिए? सोचो. और टीवी, फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन, इन तीनों के लिए वर्किंग के लिए क्या चाहिए? सेल लगाते हैं ना, ड्यूरासेल लुई वन टाइम वाले. पावर सप्लाई, तो अमोल बोला पावर सप्लाई. सो दोनों में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिसिटी, गुड. करंट, ठीक है, दोनों में करंट ही फ्लो होगा, ठीक है. सी, यहाँ पे हम लोग वन टाइम यूज वाला सेल करते हैं. वन टाइम यूज, एक बार यूज किया, फेंक दिया, फिर से नया परचेस करते, फिर से लगाते, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूस. कंटिन्यूस यहाँ पे कैसे होता है? वी यूज दिस सेल ना, ये सेल यूज करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं पर्टिकुलर एरिया. लेकिन यहाँ पे क्या, यू रिक्वायर कंटिन्यूस सप्लाई. तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई कॉर्ड होता है ना, पावर सप्लाई कॉर्ड, कॉर्ड कहाँ पे लगाते हैं? इन दिस प्लग. ये प्लग सबके घर पे ऐसा प्लग. देखो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का जो पावर सप्लाई कॉर्ड है, उसको यहाँ पे लगाते हैं, है ना. तो दिस आर 5 होल्स, उसमें इंसर्ट करते, 3 पिन वाला, ये ऑल आर 3 पिन, यहाँ पे इंसर्ट करते. मोस्टली टीवी अभी 2 पिन का भी आ गया, बट मोस्टली यूज 3 पिन, यहाँ से सप्लाई देते. तो जो गैजेट्स, जो इलेक्ट्रिकल गैजेट सेल पे चलते, सेल बैटरी, उसको कहते हैं डीसी सेल, और वी कैन से डीसी डिवाइसेस. उसको कहेंगे डीसी डिवाइसेस.
डिवाइसेस व्हिच आर वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट, इट इज नोन एज डीसी डिवाइसेस। कि जिसको बैटरी लगाएंगे खत्म कर देंगे, फिर से नया बैटरी लगाएंगे। टीवी, रिमोट, टॉर्च और वॉल, इसको ऐसे प्लग लगाते क्या सॉकेट में इन दैट होल? नहीं। सो हियर व्हाट वी रिक्वायर दैट सप्लाई, दैट बैटरी सप्लाई इन टर्म्स ऑफ बैटरी। तो क्या कहेंगे? डीसी डिवाइस। तो जो कुछ भी डिवाइस जिसको बैटरी लगने वाला है एक्सटर्नल, जिसको लगाया, इंसर्ट किया, चालू हो गया, रिमूव किया, बंद हो गया, दैट डिवाइस इज नोन एज डीसी डिवाइसेस। एंड व्हाट इज अ डीसी? इट्स अ डायरेक्ट करंट। ठीक है। एंड जो डिवाइसेस कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, उसको प्लग यहाँ पे इंसर्ट करो, स्विच ऑन करो, कंटिन्यूसली सप्लाई मिलेगा एंड इट विल वर्क। स्विच बंद किया, सप्लाई बंद हुआ, इट विल स्टॉप। एंड दिस डिवाइसेस आर नोन एज एसी डिवाइसेस। These devices are known as AC devices. तो ये क्या है? DC, that is a direct current. This one is known as AC, that is a alternating current और alternate current. ठीक है? या सबने आंसर दिया, परफेक्ट। सो जिसको भी बैटरी लगने वाला है, that is known as DC devices. and जिसको बैटरी नहीं लगने वाला, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, this is known as AC devices. ठीक है? ये तो हो गया। Now just tell me a example, कोई भी एक एग्जांपल दो जो डीसी डिवाइस से भी चलता है, एसी डिवाइस से भी चलता है, मतलब उसको डीसी करंट भी चलता है, एसी करंट भी चलता है। सो दे वर्क ऑन बोथ द थिंग्स, डीसी एंड एसी, बोथ ऑफ देम। तो जस्ट गिव मी सम एग्जांपल कि जो वर्क करता है डीसी एंड एसी दोनों पे। जस्ट गिव मी सम एग्जांपल इन द चैट बॉक्स कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डीसी एंड एसी दोनों पे चलता है। तो मैंने डीसी क्या बताया कि एक बैटरी लगाओ, उसको कहेंगे डीसी डिवाइसेस। जिसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई देना है, उसको कहेंगे एसी डिवाइसेस। तो जस्ट गिव मी एग्जांपल कि डीसी एंड एसी दोनों पे चलता है। An example, anyone? There are too many examples. सिंपल एग्जांपल कौन सा डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं? जो डीसी पे भी चलता है, डायरेक्ट करंट पे भी, एसी करंट पे भी चलता है, अल्टरनेट करंट। सो ये एग्जांपल, ऐसा कोई डिवाइस है जो डीसी और एसी दोनों पे चलता है? रेफ्रिजरेटर नहीं। सी रेफ्रिजरेटर का अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया, लाइट के लिए समझा, तो फ्रिज चलतेगा, रेफ्रिजरेटर चलतेगा नहीं। तो मतलब उसको बैटरी तो नहीं लगा सकते ना, तो कंटिन्यूस एसी पे चाहिए। लैपटॉप, यस, लैपटॉप इज अ करेक्ट आंसर। सी लैपटॉप का देखते हैं फंक्शन। लैपटॉप देखो, लैपटॉप में दोनों मोड है। इन द लैपटॉप वी हैव बैटरी आल्सो। लैपटॉप के अंदर बैटरी भी होता है ना, एंड उसका कॉर्ड हम यहाँ पे भी इंसर्ट करते हैं ना। सो व्हेनेवर लैपटॉप इज ऑन अ डिस्चार्ज, दैट टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं? बैटरी। मतलब उसका कॉर्ड लगाने, तो कहाँ पे यूज करते हैं? बैटरी पे। whenever we just put the cord in the plug, this is known as the charging. This is known as charging. तो लैपटॉप दोनों मोड में वर्क करता है। चार्जिंग के टाइम भी लैपटॉप ऑन हो सकता है, डिस्चार्ज के वक्त भी लैपटॉप ऑन हो सकता है। मतलब लैपटॉप डीसी करंट पे भी चलता है, एसी करंट पे भी चलता है। सेम एग्जांपल यू कैन टेक मोबाइल फोन। मोबाइल फोन जब चार्जिंग करते हो तब एसी होता है, एट दैट टाइम ऑल्सो इट्स फंक्शनिंग। मोबाइल जब आप बैटरी पे यूज करते हो, उसको चार्जिंग किया आपने 100% एंड स्टिल इट्स वर्किंग, दैट इज अ डिस्चार्ज मोड, बैटरी मोड। बैटरी खत्म हो गया तो अभी चलो उसको चार्ज करते मतलब एसी करते उसको। ओके, मतलब इट्स वर्क ऑन डीसी ओनली, लेकिन वो चार्ज करते मींस हियर यू रिक्वायर इनपुट सप्लाई, दैट एसी कन्वर्ट टू डीसी एंड देन आप यूज करेंगे। कांसेप्ट याद रखो सिर्फ कि लैपटॉप को दोनों चलेगा, whether it is a battery or cord. ठीक है? So this battery is used a DC and this charging this to use AC. So laptop, mobile phone, these are some example. Headset ठीक है, you can use a headset, उसको चार्ज करते हैं आप लोग। हेडसेट जो ब्लूटूथ वाला भी आया, आप उसको चार्ज करते हो हेडसेट। यस। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी सेम है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में देर मोस्टली उसको रिक्वायर बैटरी, वो बैटरी चार्ज बैटरी आप इंसर्ट करते हो। ठीक है? सी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से व्हाइल चार्जिंग द इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप चला नहीं सकते ना, यू शुड बी एट दैट स्टेशन। तो व्हाइल चार्जिंग यू कांट रन दैट इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लेकिन लैपटॉप मोबाइल फोन कैसे व्हाइल चार्जिंग यू कैन यूज इट। दीस आर द सम डिवाइसेस यू कैन यूज इवन अ चार्जिंग। ये चार्जिंग पे नहीं चला सकते, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, इनपुट इज एसी, बाद में बैटरी में कन्वर्ट होगा। सो दिस आर द टू एग्जांपल, मेजर एग्जांपल, यहाँ पे डीसी एंड एसी दोनों यूज करते हैं। ठीक है? चलो, सो लेट्स सी द बेसिक कांसेप्ट। This concept too vast, but at your level मैंने थोड़ा सा नीचे जाके टीच किया। ओके,
तो सबको एग्जांपल पता चलेगा डीसी का। तो किसी ने पूछा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डीसी करंट, तो सबको पता होना चाहिए कि डीसी करंट में क्या क्या यूज करते हैं। टॉर्च यूज करते, टीवी का रिमोट यूज करते, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डीसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, दीज आर द थिंग, एंड दोनों का कंबाइन लैपटॉप एंड मोबाइल, ठीक है। इन्वर्टर, ठीक है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। एक्चुअल कंसेप्ट क्या, व्हाट इज अ डीसी? डीसी इज अ डायरेक्ट करंट। फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट करंट। The current which flows continuously in one direction and has a constant magnitude with respect to time, it is known as a DC current. तो उसका वेवफॉर्म कैसे आएगा? This definition follows the waveform. तो मैंने समझो एवरेडी का एक सेल लिया 1.5 वोल्ट, तो उसका सप्लाई कंटिन्यूसली 1.5 वोल्ट, जब तक 1.5 वोल्ट खत्म नहीं होता तब तक ये कंटिन्यूस सप्लाई देगा इन वन डायरेक्शन। तो दैट इज नोन एज अ डीसी करंट। तो डेफिनेशन क्या है कि ऐसा करंट जहां पे करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, उसका वैल्यू कितना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होता है। सो लेट्स सी दिस ग्राफ। दिस इज द करंट ग्राफ, दिस इज द करंट का एक्सिस एंड दिस इज टाइम का एक्सिस। तो दिस ग्राफ फॉलोज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो यहाँ पे वैल्यू कितना है? 5 एम्पीयर। तो दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट ना, at a 0, at 10 second, at 20 second, at 30 second, at 1 hour. It's a constant, continuous supply है. So this is known as the DC. तो किसी ने ये ग्राफ दिया और पूछा किसका ग्राफ है? This graph follows the DC. किसका ग्राफ है? DC का, ठीक है। So this graph belong to DC. Sure? तो this is DC. तो DC क्या है? Current is flowing continuously in one direction. See, एक ही डायरेक्शन है, towards right, or we can say forward. एक ही डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है क्या? नहीं ना, इट्स अ कांस्टेंट, सेम मैग्नीट्यूड फॉलो हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डीसी करंट। अभी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग मतलब चेंज होने वाला है, कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी जीरो होगा। इट में इंक्रीज, इट में डिक्रीज, इट में बिकम जीरो, इंक्रीज, डिक्रीज, जीरो, ऐसे होगा, ठीक। लेट्स सी द करंट व्हिच पीरियोडिकली पास थ्रू द डेफिनेट साइकिल ऑफ चेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, लेकिन जो कुछ भी चेंज है वो डेफिनेट साइकिल में, पीरियोडिकली। मतलब सी दिस ग्राफ। सो पहले वो जीरो था, करंट पहले जीरो था, देन इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए, माउंटेन के टॉप पे, एंड देन इट्स डिक्रीजिंग, अगेन जीरो हुआ, अब नीचे जाएगा, इट विल अगेन रीच द नेगेटिव मैक्सिमम, अगेन इट विल इंक्रीज। This is known as a one cycle. One cycle क्या होता है? I will tell you afterwards. ये हो गया one cycle. Again it will follow same path. So क्या हुआ? जीरो से इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम गया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर जीरो पर गया, फिर सेम रिपीट करेगा इन द मिरर इमेज, अपोजिट साइड, नीचे गया फिर ऊपर गया। So that's why it's known as alternating, positive, negative, positive, negative, and in between जीरो भी आ रहा है यहाँ पे, this will become zero. So the current which pass periodically, तो ये साइकिल देखो, periodical मतलब क्या? ये हो गया एक सेट, सेम सेट अगेन रिपीट होगा, दिस इज सेकंड सेट, सेम सेट अगेन रिपीट होगा, थर्ड सेट, फोर्थ सेट, तो दैट्स इट्स पीरियोडिकल। पीरियोडिकल मतलब कि समझो एक सर्कल, आपने यहां से रोटेशन स्टार्ट किया, नाउ यू आर हियर, अगेन यू आर रोटेटिंग, सो यू आर फॉलोइंग द सेम पाथ ना, यू आर फॉलोइंग द सेम पाथ, दैट इज नोन एज पीरियोडिकल। यू आर फॉलोइंग द सेम पाथ इन द सेम टाइम, इट विल बिकम पीरियोडिकल। Periodical मतलब same thing happening over the same time, that is known as periodical. So in periodically definite cycle, एक ही साइकिल फिर से रिपीट हो रहा है, एक साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल। हाँ, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एवरी टाइम चेंज हो रहा है। अभी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव था, अभी डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव में, अभी निगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, एंड ऑल द थिंग्स। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजिंग इन डेफिनेट साइकिल। तो किसमें चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में, बट इन अ डेफिनेट साइकिल। यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग, बट इन डेफिनेट साइकिल, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट स्लाइड, एंड इसमें कुछ भी डाउट होगा तो जस्ट इन्फॉर्म, एल्स यू कैन राइट डीसी वर्सेस एसी इज क्लियर। नहीं तो चैट बॉक्स में क्या लिखना? डीसी वर्सेस, कुछ भी स्पेसिफिक डाउट होगा you can ask me in the chat box. Okay, just go through the point. No need to draw. After the lecture, we can draw it. You can write it. So right now, just focus on this first slide. Just go through it. कुछ भी doubt होगा तो पूछो. Else in the chat box, you can write DC versus AC.
ठीक है, चलो फटाफट। So let's say the chat box. I think सबको क्लियर हुआ है। तो आदित्य, दिशा, हर्षवर्धन, वैशाली, गौरव, अमोल, आयुष, ओंकार, लक्ष्मीकांत, वेदांत, मंदार, everyone is clear. ठीक है, तो इन एग्जाम if they ask you what is a DC and what is AC as a definition, उन्होंने पूछा define DC, define AC, तो ये definition लिखना है दोनों का, ये डायग्राम ग्राफ ड्रॉ करिए। ठीक है, तो योर ड्राइंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। ओके, वी शुड अंडरस्टैंड क्या भाई क्या है। यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट डेफिनेट साइकिल पीरियोडिकली उसके बाद सेम टू सेम रिपीट होगा। ठीक, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी और डीसी? हम लोग क्या यूज करते हैं एसी और डीसी मोस्ट ऑफ द लाइफ में? एसी, व्हाई वी यूज एसी? सो देयर आर सम पॉइंट कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एसी देन डीसी। डीसी से ज्यादा एसी का बेनिफिट है। सी डीसी वाले आप डिवाइसेस देखो, एसी वाले डिवाइसेस, which one is more useful? टीवी का रिमोट। now टीवी का रिमोट नहीं होगा, still we can watch the TV, still we can handle the TV। अभी स्मार्ट टीवी आ गए, मोबाइल पे उसका टीवी रिमोट कन्वर्ट हुआ है ऐप में, so we can still function the TV। टॉर्च नहीं है तो भी चलेगा, मोबाइल में टॉर्च है। तो डीसी डिवाइसेस इतने यूजफुल नहीं है। एसी डिवाइसेस आर टू मच यूजफुल, लाइक अ टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इससे सिवा लाइफ तो चलेगा नहीं। लैपटॉप में बैटरी नहीं, ठीक है चलेगा, लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया, मतलब उसका कुछ वर्किंग नहीं है, उसका क्वालिटी भी इतना कुछ क्वालिटी अभी कुछ बचा ही नहीं है, उसका बैटरी टोटली खराब हो गया। स्टिल यू कैन प्लग द सप्लाई एंड कंटिन्यूअस मोड पे यू कैन वर्क द लैपटॉप। सी देयर आर सम स्टूडेंट्स हैं जिनका बैटरी का नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली लैपटॉप का, तो क्या करते हैं कंटिन्यूअस पावर सप्लाई पे लैपटॉप चलाते, तो पावर सप्लाई चालू है तब तक लैपटॉप चलेगा, पावर सप्लाई बंद तब लैपटॉप बंद। मेरा एक लैपटॉप ऐसी है, तो वी कैन वर्क द लैपटॉप इन एसी मोड, लेकिन डीसी मोड पे कंटिन्यूस चलेगा कि नहीं, 2 आवर्स 3 आवर्स उसके बाद बंद, खत्म। एसी सप्लाई विल गिव द मोर एडवांटेजेस देन द डीसी, क्योंकि डीसी के डिवाइसेस देखो ना, नॉट इतना यूजफुल नहीं है, उसे कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव आ गया है नेचुरल इन द मार्केट, बट एसी का अल्टरनेटिव अब तक है, एंड डीसी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एसी ओनली। एसी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, एंड फॉर दैट स्टोरेज वी रिक्वायर डीसी, तो उसको डीसी में कन्वर्ट कर, लेकिन कितना स्टोर करेंगे उसका भी एक लिमिटेशन है, जितना ज्यादा स्टोर करेंगे उतना आपको ये लगेगा, सेटअप लगेगा। सी एट योर होम यू हैव इन्वर्टर, किसी ने उठा के देखा इन्वर्टर कभी? करो मत, लेकिन जब इंस्टॉल करते थे तो कितना हेवी होता है इन्वर्टर, आपके होम के लिए सप्लाई चाहिए, पूरे बिल्डिंग को नहीं चाहिए, स्टिल वो कितना हेवी होता है, कितना बैटरी बैंक वहां पे यूज होता है। तो इमेजिन पूरे दुनिया चलानी है डीसी पे, तो कितना बैटरी बैंक लगेगा, कितना हेवी होगा। तो जितना ज्यादा सप्लाई आपको चाहिए डीसी में स्टोरेज, उतना ज्यादा हेवी होगा। सो एसी इज मोर यूजफुल देन द डीसी, लेकिन एसी स्टोर करना इसलिए डीसी में कन्वर्ट किया। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी और डीसी? सो लेट्स सी फर्स्ट वन, द वोल्टेजेस इन एसी सिस्टम कैन बी रेज्ड एंड लोअर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस कॉल्ड ट्रांसफार्मर, एंड डीसी सिस्टम इट्स नॉट इजी। आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर अटेंड भी किया होगा, उसमें मैडम ने ट्रांसफार्मर भी टीच किया होगा। सो एसी में क्या होता है, समझो एसी वोल्टेज इज 230 वोल्ट, इनपुट इज 230, मुझे उसको बढ़ाना है, मुझे उसको 300 वोल्ट करना है, कर सकते हैं क्या? यस यू कैन डू इट। 230 से मैंने 300 अचीव किया, हो सकता है। 230 से मुझे 30 तक लाना है, 30 वोल्ट तक डिक्रीज करें, हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। मीन्स यू कैन इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ एसी, यू कैन डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ एसी, यू कैन रेज, यू कैन लोअर। तो एसी में जो इनपुट है उसको आप बढ़ा भी सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो बाय यूजिंग व्हिच डिवाइस? ट्रांसफार्मर। लेकिन डीसी में ऐसे हो सकता है कि नहीं? सो डीसी का एक बैटरी 1.5 वोल्ट, उसको मुझे 0.5 वोल्ट करना है, इतना इजी नहीं, कर सकते हैं लेकिन इतना इजी नहीं। उसको बढ़ा के मुझे 3 वोल्ट करना है, इतना इजी नहीं, स्टिल वी कैन डू इट।
but as compared to AC conversion, DC conversion थोड़ा सा problematic. So what is the advantage of AC over DC? First major advantage is कि we can increase and decrease the value of AC. AC का value बढ़ा भी सकते हैं, increase भी और decrease भी कर सकते हैं by using transformer. Step up, step down. ठीक है, DC में इतना possible नहीं, easily possible नहीं. That is the first thing. Second thing, in AC transmission are always economical and efficient due to lesser copper loss. See, समझो कि यहाँ पे मैंने AC सप्लाई जनरेट किया, यहाँ पे मैंने AC पावर जनरेट किया, एंड मुझे यहाँ पे एक होम है उसको देना है, यहाँ पे एक होम है उसको ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ से एक वायर कनेक्शन होगा, तो मुझे यहाँ से AC सप्लाई देना है टू दिस होम, तो इसका जो कॉस्ट लगने वाला है, दिस कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर टू कि मेरे पास एक DC सप्लाई और DC सप्लाई होगी. तो समझो ये होम है, मुझे AC सप्लाई यहाँ से वहां तक लेके जाना है, तो उसका जो कुछ भी कॉस्ट होगा, और DC सप्लाई यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, उसका जो कुछ भी कॉस्ट होगा, इसमें दिस कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर टू दिस कॉस्ट. इसका कॉस्ट ज्यादा, इसका कॉस्ट ज्यादा होगा. सो दिस इज थोड़ा ट्रांसमिशन, दिस इज थोड़ा ट्रांसमिशन. तो आपने पोल देखे होंगे इन एरिया, पोल वहां पे ऐसे सप्लाई होता है, वायर्स होते हैं, वहां से क्या फ्लो होता है? AC करंट, यू कैन से AC वोल्टेज. DC का देखा ऐसे कौन सा लाइन? नहीं, DC is a battery. So transmission flow of AC, that is on a transmission, is economical, meaning financially beneficial, efficient भी, उसका efficiency भी ज्यादा होता है, because यहाँ पे copper loss क्या होता है? कम होता है. Now what is a copper loss? वो देखेंगे in the next lecture. We have one topic, what is a copper loss, what is iron loss, वो सब है. तो now just remember one thing कि AC का transmission economically and efficiently अच्छा है, efficiency ज्यादा है as compared to DC. That is the second point. Third is AC supply can be easily converted into DC supply, but DC to AC conversion is not. मतलब you can convert AC to DC. लैपटॉप में तो वही होता है, you charge लैपटॉप और बैटरी उसका बैटरी का वैल्यू बढ़ता है, बैटरी 10% था अभी 100% हो गया, मतलब क्या हुआ? AC सप्लाई कन्वर्टेड टू DC. इन द सेम थिंग ना, मोबाइल आप चार्ज करते हो, 10% था 90% हो गया, मतलब चार्जिंग हुआ मतलब AC का DC में कन्वर्जन हुआ. तो AC टू DC ठीक है, कर सकते, इजीली कन्वर्जन कर सकते AC टू DC, बट DC टू AC इतना इजी नहीं है. ठीक है, सो वी कैन कन्वर्ट AC टू DC वेरी इजीली, बट DC टू AC एज कंपेयर टू दिस कन्वर्जन इज नॉट इजी, इतना इजी नहीं. वी कैन डू इट. द मैकेनिज्म complex than the AC supply. Fourth one, AC electrical motors are simple in construction, cheaper and require less attention from the maintenance point of view. तो जो कुछ भी एप्लीकेशन, वहां पे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया मोटर, तो जो कुछ भी मोटर्स AC पे चलते हैं, दे रिक्वायर सिंपल कंस्ट्रक्शन, उनका साइज छोटा है, जो कुछ भी डिवाइसेस है वो छोटे साइज के, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं, चीपर है, उसका कॉस्ट भी बहुत कम, एंड लेस अटेंशन, उसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं. वंस यू स्टार्टेड इट विल चलेगा, वो चलेगा जब तक सप्लाई बंद नहीं होगा तब तक वो चलेगा. सो उसका मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू में इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं. लेकिन अगर DC मोटर देखा तो इट विल बी मोर कॉस्टली, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, एंड मेंटेनेंस उसको एवरी टाइम देना पड़ेगा. ठीक है, so these are the 4 points. You can add few more points. You can search on the internet, you can refer the reference book and you will get the answer. So you can add few more points, not necessarily यही 4 point, but this 4 points are important, but you can add 5 points, 6 points, 7 points, 8 points. लेकिन 2 marks के लिए पूछा तो you require at least 4 points. ठीक है, so these are the points you can write your own word, not necessarily same copy paste. You can write in your own word. ठीक है, तो in exam they may ask you what is the advantages of AC or DC, so you can write down this point. ठीक है, just go to the second slide. If you have any doubt, you can ask me. Else in the chat box you can write advantages of AC or DC. It's clear. ठीक है, just go through it and inform me in the chat box. चलो. So in the chat box you can write the heading that advantages of AC or DC is clear. कुछ भी डाउट अगर पूछो, go through. ठीक है, चलो.
So कुछ भी डाउट होगा you can use the chat box, else you can use chat box, write down the advantages of AC or DC is clear. Good. So we have Disha Pawar, Amol, Onkar, Sarachos, Harshvardhan, Aditya Tiwari, Krishna, Samriddhi, Gaurav, Ayush, Vedant, others. You can also write in chat box. Vaishali or anyone. Concept simple. Yes. Lakshmi also says Aditya Mandar. Very good. So let's see the next one. Next concept. Now let's see the graph. First हम लोग ग्राफ देखेंगे, AC का ग्राफ देखेंगे, ओके, वेव फॉर्म देखेंगे. So this is the y-axis and this one is the x-axis. So first of all, draw the graph of EMF. EMF क्या होता है? It is one of the form of voltage, electromotive force. So EMF draw करते हैं. So let's say this is the first graph. So यहाँ पे EMF, this point is known as EMF. So short form में EB लिखते हैं. And this is the time. Okay? And this is 0. So at a 0, what is the value of EMF? 0. जब पॉइंट 0 था तब EMF का वैल्यू क्या था? 0. समझो यहाँ पे this point is known as T1. ग्राफ कहाँ पे पूछा? टाइम T1. इतने में 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड कुछ भी. एक टाइम पे ग्राफ कहाँ पे रीच हुआ? एट दिस पॉइंट. तो एट T1 ग्राफ कहाँ पे गया? E1. एट T2 ग्राफ कहाँ पे गया? एट E2. Let's take this point. This is the middle point. That's a T3. At T3 ग्राफ कहाँ पे? E3 पे. Let's take this one. At T4 ग्राफ कहाँ पे? E4 पे. At T5 ग्राफ कहाँ पे आ गए? 0 पे. देखो यहाँ पे आ गए. Then at T6 ग्राफ कहाँ पे? नेगेटिव है. It is e raised to 6. नीचे गया मतलब नेगेटिव. See, this value are positive. This is positive axis, and this is negative axis. ऊपर के वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे के वैल्यू नेगेटिव. सो लेट्स टेक अगेन T7, इट्स E7. यहाँ पे T8, इट्स E8. अगेन यहाँ पे T9 एंड दिस विल बिकम 0. ठीक है. सी इन दिस ग्राफ, इन दिस वेवफॉर्म, कितने बार वेवफॉर्म 0 पे गया है? फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम. तो 0 वैल्यू कितने बार आया इन द ग्राफ? 3 टाइम. 0 कितने बार आया? 3 टाइम. इनिशियली फर्स्ट डोम होने के बाद, फर्स्ट माउंटेन होने के बाद अगेन 0, सेकेंड माउंटेन होने के बाद अगेन 0. तो 3 टाइम 0 हुआ. मैक्सिमम कितने टाइम हुआ? मैक्सिमम मतलब क्या? सी इफ दिस इज माउंटेन, आपने अगर माउंटेन क्लाइंबिंग स्टार्ट किया, तो ये डोंगर एक चढ़ता है, एक माउंटेन, तो आपने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, यू रीच 1 पॉइंट, आप यहाँ तक पहुंच गए. दिस इज द पीक ऑफ माउंटेन, इसको कहेंगे पीक. टॉप पॉइंट ऑफ द माउंटेन, उसको क्या कहेंगे? पीक. इसको ऑल्सो कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट. तो आपने 0 से स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम यू रीच द मैक्सिमम, उसके बाद नीचे आ गए. देयर इज वन मोर माउंटेन डाउन साइड, यहाँ से अगर स्टार्ट किया जर्नी, तो दिस इज आल्सो मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज आल्सो नोन एज पीक पॉइंट, एंड देन 0. तो इन वन ग्राफ, इन वन वेवफॉर्म, आपने कितने बार मैक्सिमम को टच किया? 2 टाइम. लेकिन दोनों मैक्सिमम डिफरेंट है. तीनों 0 और से, ऑल 3 आर 0 से. लेकिन यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट टॉप माउंटेन का है और ये मैक्सिमम बिलो माउंटेन का. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ पॉजिटिव मैक्सिमम, और इसे कहते हैं नेगेटिव मैक्सिमम. क्यों? यहाँ पे जो कुछ वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे जो वैल्यू दैट विल बी नेगेटिव. तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन एक पॉजिटिव मैक्सिमम और एक नेगेटिव मैक्सिमम. सो 2 टाइम मैक्सिमम हुआ, in which first is a positive maximum, second is a negative maximum.
ठीक है, ये पता चल गया। देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन। देन लेट्स टेक व्हाट इज द साइकिल। साइकिल क्या होता है? साइकिल मतलब कि एक बार पॉजिटिव होना एंड एक बार नेगेटिव होना, दिस इज नोन एज अ वन साइकिल। सो जीरो से स्टार्ट किया, एक बार पॉजिटिव हुआ, उसके बाद फिर से जीरो गया, उसके बाद फिर से नेगेटिव हुआ और फिर से जीरो। दिस इज नोन एज अ वन साइकिल। लेट्स टेक दिस वन। आपने यहां से जर्नी स्टार्ट किया, आपने एक सर्कल पाथ क्रॉस किया, अगेन यू आर हियर, so this is known as one cycle na. Then again you will round it, this will complete the second cycle, again you will round it, this will complete the third cycle. So you are following the same path again and again. आपने एक path फिर से follow किया, तो same thing, पहले जीरो था, एक पॉजिटिव डोम है, एक पॉजिटिव माउंटेन है, उसके बाद अगेन जीरो हुआ, you again reach a negative, again zero. तो one positive and one negative, it's known as one cycle. क्या बोला? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको मिला के क्या होता है? वन साइकिल। सेम बाद में रिपीट होगा, इसके बाद सेम पॉजिटिव नेगेटिव रिपीट होगा। सो दिस इज नोन एज अ वन साइकिल। ठीक है, दिस होल इज नोन एज अ वेवफॉर्म, इसको कहते हैं वेवफॉर्म। जो मैंने ड्रॉ किया है उसको कहते हैं वेवफॉर्म। तो मैंने जो ड्रॉ किया दिस इज नोन एज अ वेवफॉर्म। उसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को मिला के क्या होता है? एक साइकिल। उसके बाद सेम रिपीट होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड साइकिल, एक पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, जैसे रिपीट होगा। तो दिस इज नोन एज अ साइकिल। ठीक है, then at a zero value is zero, at t1 value is e1, at t2 value is e2, at t3 value is e3। मतलब हर एक टाइम पे वैल्यू से डिफरेंट। जीरो पे वैल्यू जीरो था, t1 पे वैल्यू e1 है, चेंज हुआ, t2 पे वैल्यू e2 है, अगेन चेंज हुआ, t3 वैल्यू e3 चेंज हुआ, t4 e4 t5 जीरो। मतलब द वैल्यू इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, कभी वो इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज, कभी अगेन डिक्रीज, कभी अगेन इंक्रीज, कभी अगेन जीरो। सो एवरी टाइम फॉर एवरी सेकंड एंड सेकंड द वैल्यू इज चेंजिंग। This values are known as instantaneous value. At an instant, हम क्या होता है? मैगी इज इंस्टेंट ना, मतलब 2-3 मिनट पे तैयार होता है, इमीडिएटली। पॉपकॉर्न आ गया इंस्टेंट, विद इन अ फ्यू मिनट इट स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट ईटिंग, तो इट्स इंस्टेंट ना। एनी जूस इज इंस्टेंट। सो एनी वैल्यू व्हिच इज चेंजिंग इंस्टेंटली, immediately, that is known as instantaneous values. मतलब टाइम चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुआ। टाइम चेंज हुआ मतलब इंस्टेंट चेंज हुआ, instantaneous मतलब instantly value change हुआ। So when you change the timing, the value gets changes. That is known as instantaneous value. आपका टाइम चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुआ। So this all values are known as instantaneous value. So 0, E1, E2, E3, E4, again 0, then E6, E7, E8, 0. These are known as instantaneous value. और सबका टाइम डिफरेंट है। T4 पे वैल्यू E4 जाएगा, T6 पे वैल्यू E6 होगा, T6 पे वैल्यू E7 नहीं होगा, because it's instantaneous. हर एक वैल्यू के लिए हर एक टाइम रिक्वायर्ड है। वैल्यू T5 पे 0 होगा, T9 पे 0 होगा, एंड 0 पे 0 होगा, T2 पे 0 होगा क्या नहीं? वैल्यू T3 पे मैक्सिमम होगा, T7 पे मैक्सिमम होगा, नॉट एट अदर। दैट्स व्हाई इट्स नॉट द इंस्टेंटेनियस। हर एक पॉइंट का वैल्यू हर एक टाइम पे होगा, इट विल रीच दैट वैल्यू एट पर्टिकुलर टाइम ओनली। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो एनी डाउट इन द बेसिक पॉइंट? तो मैंने अब तक क्या क्या टीच किया कि इन वन वेवफॉर्म, दिस इज नोन एज अ वन वेवफॉर्म, दिस इज नोन एज अ वेवफॉर्म। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला के क्या होता है? एक साइकिल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला के क्या होता है? एक साइकिल। इन वन साइकिल कितने जीरो? 3 टाइम, एक जीरो, सेकंड जीरो, थर्ड जीरो। इन एक साइकिल कितने मैक्सिमम? 2, फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम। फर्स्ट मैक्सिमम इज पॉजिटिव एंड सेकंड मैक्सिमम इज नेगेटिव। तो मतलब टोटल मैक्सिमम कितने हैं? 2, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। इन अ वेवफॉर्म, इन साइकिल क्या? देयर आर डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, हर एक टाइम पे वैल्यू चेंज होगा। These are known as instantaneous values. ठीक है, so any doubt in the क्या बोलते हैं वेवफॉर्म? any doubt in a waveform जो मैंने ड्रॉ किया उसमें? anyone देख लो, इन वेवफॉर्म में कुछ भी डाउट है तो we'll see the each and every parameter. तो हमने साइकिल देखा, वेवफॉर्म देखा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखा मैक्सिमम, नेगेटिव, ये सब देखा। we'll once again revise it in statement form. ठीक है, तो जो मैंने ड्रॉ किया कलरफुल दिख रहा है मस्त, इट्स लुक वेरी क्लियरली। चलो लेट्स सी द एक्चुअल स्टेटमेंट। चलो, सो उन्होंने एक ड्रॉ किया, ठीक है। सो मैंने भी सेम फॉर्म में किया था, लेकिन उनका थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट है। एक एक पॉइंट देखते हैं।
इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैंने बताया अभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। बोला था मैंने एट अ पर्टिकुलर टाइम वैल्यू चेंज हो रहा है, तो T1 पे वैल्यू क्या था E1, T2 पे वैल्यू क्या है E2, T3 पे वैल्यू क्या है E3, तो हर एक टाइम पे वैल्यू चेंज हो रहा है। सो द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मतलब क्या, इट में भी EMF, इट में वोल्टेज, इट में भी करंट, इट में भी पावर, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर द क्वांटिटी ऑफ अल्टरनेटिव, मतलब AC क्वांटिटी, EMF, voltage, current, power. So we can draw the graph of anything, not only voltage, we can also draw the for current, power, EMF, कुछ भी आ सकता है। So हर एक alternating quantity का value change होगा at a particular instant, instant मतलब time. These are known as the instantaneous values. Example यहाँ पे उन्होंने दिया E1 and E2 are the instantaneous value of an alternating EMF at instant T1 and T2. तो जब टाइम T1 था तो वैल्यू क्या होगा E1, जब टाइम T2 था तो वैल्यू क्या था E2. एग्जांपल हमने क्या लिया था EMF. So this is the definition of instantaneous value. So exam में they'll ask you what is instantaneous value. Okay, so that time you can draw the graph as a graph बना दो. So this point is a T1 and that's why the value is E. This point is a T2, so that's why the value is E. ऐसे दिखा दो, so they'll understand. ठीक है, just go through the definition. ये graph बाद में लिखते हैं because मैंने जो बनाया that is the most easily understandable than this. मैंने graph दिया because once we go through all the parameters, तब जाके we'll understand this whole graph. यहाँ पे पीरियोडिक टाइम क्या है, यहाँ पे माइनस क्या है, ये पॉजिटिव क्या है, Emax ERMS क्या है, रेडियन क्या होता है, APK क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब हम सब लोग सब पॉइंट देखेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट गो थ्रू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसका डेफिनेशन देख लो, कुछ भी डाउट हो तो पूछो, एल्स इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज क्लियर। चैट बॉक्स में क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज क्लियर। चलो लेट्स गो थ्रू द चैट बॉक्स, यू कैन राइट इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज क्लियर। चलो बताओ, कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क। Simple instantaneous value. So anyone in doubt? कुछ डाउट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू में? तो एक ही पैरामीटर देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखा, वेवफॉर्म, साइकिल, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ऐसे देखेंगे। पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। तो एक्चुअली हमने टॉपिक अभी स्टार्ट किया, ऐसे बोल सकते, सब्जेक्ट स्टार्ट किया, एक्चुअली सिलेबस का सब्जेक्ट तो स्टार्ट किया। चलो, so we have Mukund, Amol, Mandar, Aditya, Vaishali, Vishal, Gaurav, Ayush, Vedant, Lakshmikant, very good. So others you should also mention. Yeah, Omkar is also there, Aditya also there. Good. So let's see the next one. So there are few parameters. Waveform. The waveform क्या होता है देखो. It is a graph of instantaneous values of an alternating entity plotted against a time. मतलब क्या देखो. So एक x-axis, ये y-axis, जब टाइम 0 था तब 0 था, जब टाइम t1 था तब वैल्यू क्या था t1, जब टाइम t2 था तब वैल्यू क्या था e2, जब वैल्यू t3 था तब क्या था e3, जब टाइम t4 था तब क्या था e4, जब टाइम t5 था तब क्या था e5, जब वैल्यू t6 था लेट्स टेक इट्स 0। तो अगर मैंने ये सबको ज्वाइंट किया, ये मैंने सबको ज्वाइंट किया, तो देखो क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव वेवफॉर्म हो गया ना, पॉजिटिव वाला छोटा सा। सेम आई कैन डू फॉर द t7, t से नीचे गया e7, t8 इट विल बिकम e8, यहाँ पे समझो t9 पे 0 हुआ, तो आई कैन अगेन ज्वाइन इट। इसको अगर मैंने ज्वाइन किया तो वेवफॉर्म आ गया ना। सो व्हेन यू ज्वाइन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आपको क्या मिलेगा, इट विल गेट अ ग्राफ।
This graph is known as a waveform. So if you join the instantaneous value, सब instantaneous value को अगर मैंने join किया तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है एक waveform. So same उन्होंने बोला what is a waveform? It's a graph of instantaneous value. तो मैंने क्या plot किया है? Instantaneous value with respect to time. तो ग्राफ में हम लोग वही करते हैं ना, y एक्सिस और x एक्सिस प्लॉट करते हैं. सर इसे स्ट्रेट लाइन होता है, जीरो से पास होता है, ये मैथ्स में देखा होगा आपने. सो सेम इट्स अ ग्राफ ऑफ टाइम एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू. क्या मिलता है हमें? इट इज अ वेवफॉर्म. सेम उन्होंने दिया. व्हाट इज अ वेवफॉर्म? इट्स अ ग्राफ ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. इट्स अ ग्राफ ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम. सो टाइम कहां पे? x एक्सिस पे, एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहां पे? y एक्सिस पे. तो दोनों का ये क्या है? ग्राफ. दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज अ वेवफॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट इज साइकिल. व्हाट इज साइकिल? Each repetition of set of positive and negative instantaneous values is known as alternative. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हो गया एक साइकिल. अगेन एक पॉजिटिव अगेन एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगेन साइकिल. थर्ड पॉजिटिव थर्ड नेगेटिव, थर्ड साइकिल. फोर्थ पॉजिटिव फोर्थ नेगेटिव, सो साइकिल. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला के क्या होता है? एक साइकिल. तो इट्स अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. इट इज नोन एज साइकिल. तो साइकिल क्या होता है? वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू. यहाँ पे इट विल गिव वन साइकिल. अगर वेवफॉर्म में तीन पॉजिटिव एंड तीन नेगेटिव, मतलब कितने साइकिल हुए? 3 साइकिल. ठीक है. सो एनीवन इन डाउट? चलो आई विल गिव वन एग्जांपल, मुझे आंसर दो आप लोग. ओके, आई ड्रॉ वन ग्राफ. जस्ट गो थ्रू द ग्राफ एंड मुझे यहाँ पे बोलो कितने साइकिल से गिवन ग्राफ कितने साइकिल. तो मैंने एक वेवफॉर्म ड्रॉ किया. जस्ट यूज योर लॉजिक एंड जस्ट टेल मी इन दिस वेवफॉर्म कितने साइकिल से. तो जस्ट गिव द आंसर. किसको आंसर आता है देखते हैं. तो कितने साइकिल से यहाँ पे देखो. साइकिल क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव का एक सेट. एक सेट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए. तो वन पॉजिटिव वन नेगेटिव मतलब एक साइकिल. तो यहाँ पे कितने साइकिल है चेक करो. जस्ट गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स. देखते हैं किसका आंसर आता है. अमोल से 4. लेट्स सी. किसी को 5 दिख रहे. मुझे तो यहाँ पे 8 साइकिल दिख रहा है. 8. गौरव से 4. 4 श्योर. मुझे तो यहाँ पे 8 दिख रहे. 8. एनीवन विद द 8 साइकिल्स? देखो वेदांत से 4. सच्ची 4 है. 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, सो 4 साइकिल्स. गुड. ओमकार से 4. ठीक है. एनीवन विद द वैल्यू ऑफ 8? श्योर ना? 4 ही ना सबका? वेरी गुड. सबने 4 ही दिया. सी मैंने क्या बोला? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ना. ये एक पॉजिटिव ये एक नेगेटिव, मतलब ये एक साइकिल हो गया. ये एक पॉजिटिव ये एक नेगेटिव, मतलब सेकंड साइकिल हो गया. ये एक पॉजिटिव ये एक नेगेटिव, मतलब थर्ड साइकिल हो गया. ये एक पॉजिटिव ये एक नेगेटिव, मतलब फोर्थ साइकिल हो गई. देयर आर हाउ मेनी साइकिल्स? 4. खत्म. वेरी गुड. सबने आंसर दिया. सो दिशा, गौरव, ओमकार, मंदार, आयुष, आदित्य, लक्ष्मीकांत, गौरव, वेदांत, अमोल, सब. वेरी गुड. कृष्णा ऑल्सो. देयर आर 4 साइकिल्स. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन था. चलो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन. उसके पहले जस्ट गो थ्रू द वेवफॉर्म एंड साइकिल का डेफिनेशन. ये दोनों डेफिनेशन एक बार गो थ्रू करो. What is the definition of waveform? What is the definition of cycle? एक बार go through. Then we move for the time period. It's a mathematical. Okay. So just go through the waveform and cycle. And कुछ भी डाउट अगर पूछो, else in the chat box you can write waveform and cycle is clear. क्या लिखना है? Waveform and cycle is clear. ठीक है. चलो immediately. तो go through the both definition. उसके time period देख. First go through the waveform and cycle. And in the chat box you can write waveform and cycle is clear. ठीक है. चलो बड़ा.
कुछ भी डाउट है इन अ वेव फॉर्म एंड साइकिल तो पूछो, देन मूव फॉरवर्ड द टाइम पीरियड. So Rachit says Omkar, Krishna, Vedant, Amol, Disha, Sara, others, let's go through it. Waveform cycle, कुछ भी डाउट है तो पूछो. Else we move for the time period. Yes, Lakshmikant also there, Mandar, Param Koli. उठो तो Param Koli, केव्हाचा आत्ता आलास ना? Vaishali, Aditya. चलो, let's see the next one, that is the time period. अब टाइम पीरियड क्या दिखते हैं, ठीक है, लेट्स सी. अगेन आई ड्रॉ द ग्राफ. तो यहाँ पे कितने साइकिल्स है? 2. फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव, तो ये हो गया फर्स्ट साइकिल. सेकंड पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, तो ये क्या हुआ? सेकंड साइकिल. ठीक है, वी कैन ड्रॉ अप टू इनफिनिट, अप टू आल्सो. तो व्हाट इज अ टाइम पीरियड? सो टाइम पीरियड मतलब हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल. मैंने यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक रीच हुआ, दैट इज वन साइकिल. तो ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, दिस इज नोन एज द टाइम पीरियड. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल. तो समझो मुझे यहाँ पे लगा 20 सेकेंड टू कंप्लीट वन साइकिल. तो सेकेंड साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक एंड हुआ है, तो इसको भी कितना लगेगा? 20 सेकेंड. तो दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट. अगर आपने 1000 भी वेवफॉर्म ड्रॉ किया ना, 1000 साइकिल ड्रॉ किया ना, स्टिल द टाइम पीरियड इज द सेम. अगर कंटिन्यूस सप्लाई जा रहा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, देन द टाइम पीरियड इज अ कांस्टेंट 20 सेकेंड. मतलब अगर मैंने ये ग्राउंड है, इसका एक रोटेशन 20 मिनट में कंप्लीट किया, तो सेकेंड रोटेशन स्टिल यू कैन कंप्लीट इन 20 मिनट. अगर आपका स्पीड एंड एनर्जी इतना मेंटेन है, यू कैन कंप्लीट दैट सेम इन 20. तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो लोग बोलते हैं ना कि बता कितने मिनट में तू कंप्लीट कर सकते हैं एक राउंड. दैट मींस दे आर आस्किंग योर टाइम पीरियड. एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम तुझे लगने वाला है, दे आर आस्किंग योर टाइम पीरियड. दैट मींस यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज अ टाइम. सेम टाइम पीरियड कंटिन्यू होगा इन द सेकंड साइकिल. तो सेकंड साइकिल भी 20 सेकंड में कंप्लीट होगा, थर्ड साइकिल भी 20 सेकंड में कंप्लीट होगा. दिस वैल्यूज आर डिफरेंट फॉर एवरी वेवफॉर्म डिपेंडिंग अपॉन ईएमएफ है, वोल्टेज है, करंट की पावर उसके लिए. ठीक है, सो लेट्स सी द पॉइंट. So time period क्या होता है? That the time taken by the alternating quantity to complete its one cycle, it's known as a time. And time है मतलब किस में काउंट करते हैं? सेकंड में. तो what is the unit? It's seconds. तो seconds कैसे लगते हैं? Either they can write in SCS or sometimes they can write in S. कभी-कभी सिर्फ S लिखते हैं, so it's not a 5. Sometimes they write ऐसे लिखते हैं. तो बच्चों को लगता है it's a 25. No, it's a time 2 second. This is S. S with second. Sometimes they write full seconds. कभी SCC, कभी SC. ठीक है? It's not a 25. It's a 2S. S मतलब second. Time is 2 seconds. So what is the time period? How much time is required or how much time is taken by the alternating quantity to complete one cycle? And उसका notation क्या है? That is capital T. So capital T is a notation for the time period. Symbol. You can say symbol. ठीक है? Just go through time period. Just go through it. कुछ डाउट होगा तो पूछो. Else in the chat box you can write time period is clear. Sure, let's go through it. Yeah, Amol and Omkar ने आंसर किया करेंगे. So the chat box you can write the time period is clear. Okay. Let's see the chat box. Yes. So Aditya, Amol, Disha, Swara, Gaurav, Krishna.
single time period is clear. Very good. Others? Vaidehi, Vaishali, Samriddhi, Vedant, Rakshit. Ayush, Gaurav, Mandar, Omkar, Lakshmikant, Mukund. Good. Chalo, let's see the next one. ये दोनों कंप्लीट करते हैं and then we stop. So what is the frequency? See, frequency क्या होता है देखते हैं. Frequency. So you are standing at a Thane station. You are standing at a Thane station. तो किसी ने पूछा मुझे यहाँ से CST जाना है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. तो ठाणे टू CST ट्रेन का फ्रीक्वेंसी क्या है? तो मतलब क्या पूछ रहा है? उसने पूछा कि मुझे ठाणे टू CST जाना है, तो ट्रेन का फ्रीक्वेंसी क्या है, लोकल का फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब क्या पूछ रहा है इनिशियली क्या पूछ रहा है? मतलब उसने क्वेश्चन क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? ठाणे टू मुझे CST जाना है, तो ट्रेन का फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब इज आस्किंग हाउ मेनी ट्रेन्स आर गोइंग फ्रॉम ठाणे टू CST डेली. एक दिन में कितने ट्रेन ठाणे टू CST जाते हैं? दैट इज अ काउंट. So what is the frequency? It's not as a count, it's not as a number. कितने ट्रेन ठाणे टू CST जाते हैं वो मुझे बता. ऐसे उसने पूछा. That is from the frequency. Same you can use the concept of frequency in the waveform. Yes, let's see. So this is the waveform. First waveform, first cycle, second cycle, third cycle, fourth cycle. ठीक है, मैंने 4 cycle ड्रॉ किया. This is the first cycle. This is the first cycle. याद रखो. चलो मैं तो आपको बता रहा हूं. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 10 सेकेंड. ठीक है, मैंने बोला टाइम पीरियड इज 10 सेकेंड. मतलब क्या? टू कंप्लीट वन साइकिल हाउ मेनी टाइम इज रिक्वायर्ड? 10 सेकेंड. मेरे पास कितने साइकिल यहाँ पे? मेरे पास यहाँ पे सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल एंड देन देयर इज अ फोर्थ साइकिल. मेरे पास 4 साइकिल. हर एक को टाइम कितना लगने वाला है? 10 सेकेंड. तो अगर मैंने पूछा in 30 seconds, or I will ask you for 30 seconds, what is the frequency? See, मैंने क्वेश्चन एकदम क्लियरली पूछा. You should give the answer. मैंने एक वेवफॉर्म ड्रॉ किया है, उसपे कितने साइकिल है? 4, 1 2 3 4. टाइम पीरियड कितने है? कैपिटल T, दैट इज 10 सेकेंड. तो मैंने पूछा है फॉर 30 सेकेंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. 30 सेकेंड के लिए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस waveform? चलो, anyone give the answer? What is the answer? Simple question है. Let's see the chat box. Then उसके बता दो मैं. Yeah, अमोल ने बराबर बोला है. Count of trains going towards CST. तो this is a waveform. उसमें 4 साइकिल है. हर एक का टाइम पीरियड कितना है? 10 सेकेंड. तो for 30 सेकेंड what is the frequency? लक्ष्मीकांत ने दिया आंसर 3. इज इट श्योर? अरे श्योर. लेकिन मैंने यहाँ पे 4 साइकिल ड्रॉ किया है. 3 क्यों? ओमकार also says 3. Rachit says 6. अरे मैंने तो 4 साइकिल ड्रॉ किया है, तो why are you telling about 3 only? आंसर में भी 3, 4, 10. क्या आएगा आंसर? 6. अमोल says 6. क्या लॉजिक लगा है 6 का? वेदांत says 3. See, there are how many cycle? यहाँ पे साइकिल्स कितने? 4. एंड हर एक को कितना टाइम लगने वाला है? 10. मतलब यहाँ पे 10 सेकेंड गए. इन 10 सेकेंड फर्स्ट वेवफॉर्म ड्रॉ हुआ, फर्स्ट साइकिल. देन यहाँ पे 10 सेकेंड लगने वाले हैं, ड्रॉ द सेकेंड साइकिल. यहाँ पे 10 सेकेंड, ड्रॉ द थर्ड साइकिल. यहाँ पे 10 सेकेंड, ड्रॉ द फोर्थ साइकिल. मुझे अगर मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया तो 10 सेकेंड बाद फर्स्ट वेवफॉर्म ड्रॉ होगा, 20 सेकेंड बाद सेकेंड वेवफॉर्म ड्रॉ होगा, 30 सेकेंड बाद थर्ड साइकिल ड्रॉ होगा एंड 40 सेकेंड बाद फोर्थ वाला ड्रॉ होगा.
ठीक है, मतलब 0 सेकंड मैंने टाइमर स्टॉप वॉच स्टार्ट किया तो 10 सेकंड में कितना कंप्लीट होगा, एक साइकिल, 20 सेकंड में कितना होगा, सेकंड साइकिल, 30 सेकंड में थर्ड साइकिल, 40 सेकंड में फोर्थ साइकिल। उसने क्या पूछा है, फॉर 30 सेकंड, 30 सेकंड फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब 30 सेकंड होने के बाद कितने साइकिल कंप्लीट हुए आपके, इन 30 सेकंड कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए आपके, 3 ना, 1 2 एंड 3, फोर्थ साइकिल तो अभी स्टार्ट हुआ, एंड फॉर द फोर्थ साइकिल इट रिक्वायर 40 सेकंड, मतलब नेक्स्ट 10 सेकंड। तो उसने पूछा फॉर 30 सेकंड कितने साइकिल कंप्लीट हुए, आंसर इज 3। सो एनीवन एनी डाउट कि इन अ गिवन टाइम पीरियड आपने कितने साइकिल कंप्लीट किए, दैट इज नॉट द फ्रीक्वेंसी, जो मैंने टाइम दिया है इन दैट टाइम आपने कितने साइकिल कंप्लीट किए वो मुझे बताओ। आप कितने कर सकते हो वो मैंने नहीं पूछा, यू कैन गो फॉर द इन्फिनिटी। मैंने जो टाइम पीरियड दिया कि 1 घंटे के अंदर हाउ मेनी राउंड्स यू कैन कंप्लीट ऑफ दैट सर्कल, आप ये मत बोलो मैं तो यहाँ पे 1000 राउंड मार सकता हूँ, मैंने ये पूछा कि यू कैन ड्रॉ द 1000, नहीं, मैंने बोला कि 1 घंटे में यू कैन हाउ मेनी राउंड्स इस ग्राउंड के मार सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, मुझे वो चाहिए इन 1 आवर। आई डोंट वांट इन एक डे में आप कितने कंप्लीट करते, दैट डजंट रिक्वायर। तो मैंने जो टाइम पीरियड दिया उस टाइम पीरियड में आप लोगों ने कितना साइकिल कंप्लीट किया वो मुझे बताओ, कितना किया उसने, 3। अगर मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड दिया था 20 सेकंड तो आंसर आ जाता, 10 सेकंड आंसर इज 1, 40 सेकंड आंसर इज 4। तो मैंने जो टाइम पीरियड दिया है, मैंने जो टाइम दिया उसमें आप लोगों ने कितना साइकिल कंप्लीट किया, जस्ट टेल दैट योर आंसर, दैट इज वन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो एनीवन एनी डाउट, श्योर, पक्का, लेट्स रीड डेफिनेशन। So the number of cycles completed by an alternate quantity per second. Per second मतलब यहाँ पे उन्होंने 1 सेकंड का लॉजिक यूज किया है, लेकिन दिस वैल्यू से डिफरेंट, उन्होंने जस्ट बेसिक स्टैंडर्ड के लिए 1 सेकंड यूज किया, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, बट वी कैन चेंज द वैल्यू कि 10 सेकंड में आपने कितना कंप्लीट किया है, 20 सेकंड में कितना कंप्लीट किया है, 30 सेकंड में कितना। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। क्या फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, तो जो कुछ भी होगा उसको डिवाइड करो 10 से, दिस टाइम से। So how to find frequency easily, f is equal to 1 upon t, and frequency का notation क्या है, that is small f, and SI unit क्या है, hertz, hertz is the name of the scientist, and notation किसका है उसका, capital H small c, that is 1 hertz। ठीक है, कभी कभी रेडियंस पर सेकंड भी लिखते हैं, बट राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या, कितने साइकिल्स आपने कंप्लीट किए इन अ गिवन टाइम पर सेकंड, फॉर्मूला इज f is equal to 1 upon t। ठीक है, दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी। सो एनीवन एनी डाउट इन द फ्रीक्वेंसी, कुछ भी डाउट है फ्रीक्वेंसी में चेक करो, ऐसे में चैट बॉक्स से कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज क्लियर। से ठाणे टू सीएसटी डेली 100 ट्रेन जाते हैं, लेकिन मुझे 100 ट्रेन के लिए वेट करने की नहीं, मुझे 1 घंटे में कितने ट्रेन जाते हैं, अगर मैंने ये पूछा तो आपको स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा, हाँ 1 घंटे में देर आर ओनली जस्ट 10 ट्रेन। तो मुझे बोलो मत कि ठाणे टू सीएसटी 100 ट्रेन जाते हैं डेली, मुझे 10 AM टू 11 AM इसमें कितना ट्रेन जाता है वही बोलो, तो दैट इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ना। तो कितने साइकिल्स आपने कंप्लीट किए इन अ गिवन टाइम, दैट इज नॉट द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जस्ट गो थ्रू द फ्रीक्वेंसी। So just write parameters नहीं, just write frequency is clear or not. Yeah, frequency is clear. Good. So Disha, Parag, Param, Rachit, Lakshmikant, Sara, Ayush, Gaurav, Ankur also there. Okay. And then we'll see the last concept, that is amplitude. उसके बाद next section. So anyone in doubt in the frequency वाला concept? Frequency is clear. Sure. Good. Let's go to the next one. So the frequency is clear. So let's see the next one, that is the amplitude class concept, and then let's solve. See amplitude क्या है देखो, again I'll draw the waveform. So ये मैंने वेवफॉर्म ड्रॉ किया, यहाँ पे 0 वैल्यू है, हर एक कुछ वैल्यू है। अब यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे, दिस वन, दिस इज टॉप पॉइंट ऑफ द वेवफॉर्म, दिस इज नोन एज मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज पॉजिटिव मैक्सिमम ना।
and this side is known as a negative maximum. नीचे गया सबसे negative maximum. So the value of positive maximum and negative maximum is known as the amplitude. Both are same. तो समझो ये EMF का वेवफॉर्म है, तो सिर्फ 5 वोल्ट मैक्सिमम, तो सिर्फ -5 वोल्ट मिनिमम. बोथ आर सेम, लेकिन यहाँ पे साइड अपोजिट, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड, बट बोथ आर सेम. So the value of positive maximum and negative maximum is known as amplitude. उसका और एक नाम है, that is a peak. This value also known as peak value. This also known as maximum value. There are 3 names: amplitude, maximum और peak value. All 3 are same. So what is amplitude? अगर मैंने एक वेवफॉर्म ड्रॉ किया तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे, whether it is पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, दोनों सेम ही होने वाले, सिर्फ साइन का अपोजिट होगा, या फिर नेगेटिव. तो मैक्सिमम वैल्यू उसने कितना अटेन किया है, दैट वैल्यू इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे, दैट वैल्यू इज नोन एज द मैक्सिमम. दिस 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो दिस इज नोन एज मैक्सिमम. उसके बाद यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम, यहाँ पे भी कम. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, पीक और मैक्सिमम, ऑल थ्री आर सेम. सो लेट्स सी. So the maximum value attained by an alternating quantity during the positive and negative half cycle is known as amplitude. देखो, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू था, ये नेगेटिव साइकिल, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू था. दैट इज अ पॉजिटिव ओनली, पर नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव मैक्सिमम. दिस इज पॉजिटिव मैक्सिमम and this is negative maximum. So maximum value attained by the alternating quantity at positive and negative cycle, it's known as amplitude. It's also known as a maximum value or peak value. तो अगर वोल्टेज का ग्राफ होगा तो आई कैन राइट Vm. Vm मतलब एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज. करंट का होगा तो Im, EMF होगा तो Em, पावर होगा तो Pm. M सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं. So amplitude मतलब maximum value attained by that quantity during the positive negative cycle. It's also known as a peak value, amplitude. नोटेशन कैसे, Pm, Em, Vm, Im, डिपेंड अपॉन कौन सा क्वांटिटी, पावर, EMF, वोल्टेज का. तो यहाँ पे M लिखा मतलब इट्स अ एम्पलीट्यूड, इट्स एम्पलीट्यूड. ठीक है, श्योर. चलो देख लो एम्पलीट्यूड. सो एनीवन इन डाउट इन द एम्पलीट्यूड, एलएस इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट एम्पलीट्यूड इज. चलो देख लो, देन वी मोस्टली स्टॉप. Sure, anyone in doubt? देख लो. So we have Saga Chos, Rachit, Amol, Mandar, Disha, Omkar, Vedant, आदित्य तिवारी और Vaishali is there, others. Then Gaurav, Ayush, Krishna, good. Vaidya is there. ठीक है, सो आज हमने क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं. Then we'll stop. First we'll do the summary what we did in the previous class. हमने देखा what is the DC and AC conceptually and practically also example के साथ. Then हमने देखा what are the advantages of AC और DC with a few points. Then हमने waveform कैसे आता है वो देखा, उसका instantaneous value क्या होता है. Then waveform क्या होता है, meaning of waveform as per the definition, cycle, time period, frequency and amplitude. इतने parameters. Okay. In the next lecture हम क्या क्या देखेंगे, angular frequency. Frequency देखा, लेकिन angular frequency क्या होता है देखेंगे. Then we'll see what is the form factor, peak factor. Then what are the AC equation in the EMF, voltage and current. Then see what is the phase difference, in phase, out of phase. Then in phase means 0 degree.
then out of phase में lag and lead you consider. Okay, sure. So we'll see in the next lecture. Now what to do in the chat box? Just write your name. कुछ भी doubt होगा तो write a specific doubt. Else in the chat box just write your name. Okay, write your name and then we'll stop. तो जो continuously present थे during the lecture उनको attendance मिलने वाला है. Okay, बाकी सबको you won't get anything. तो जो बीच में गायब हो गए बीच में they will not get anything. Okay, so if you are continuously attending the lecture then you will get the attendance. So just check कौन present है. कोई अभी आया तो उसको अटेंडेंस मिलने वाला नहीं है. This is not attendance. This is just yeah. So we have Rachit, Param, Krishna, Omkar, Sarachos, Gaurav, Vaidehi, Param, Isha, Aditya, Samruddhi, Mandar, Ayush, Omkar, Tiwari also there. Mukul Sonari also there. Good. Tomorrow you won't have a tomorrow जो 9 to 10 EC का lecture वो नहीं होगा because I'm busy in my work. So we'll arrange that lecture either on Friday. We'll arrange that lecture on Friday and Saturday. We'll take a lecture on both the days. You know the reason I can't take a lecture. So we'll compensate all the lecture on Friday and Saturday. And we'll take extra lecture on Friday and Saturday. Okay. So I'll not take continuously 2 lectures. I'll break it. Okay. So either morning week lecture liya, so in the afternoon I'll take 1 more lecture. Same for the Saturday. The Saturday you don't have any extra lecture. Okay. So only EC ka yoga. So morning week lecture, afternoon week lecture. We'll mostly try to complete the syllabus before the time. Is complete नहीं कि उड़ा देंगे सब कुछ. You will have a recording also. You know I'm taking very slowly to get the concept. So tomorrow 9 to 10 lecture EC का नहीं होगा. I'll inform you. Madam also inform you. We'll conduct that lecture on Friday. Thursday तो आप लोग कॉलेज में नहीं हो लोग, तो you don't have that much time for the practical. We'll conduct the lecture on Friday and Saturday. Okay, so we'll complete 2 lectures on Friday, 2 lectures on Saturday. Okay, so anyone in doubt? कुछ भी doubt है पूछना है, कुछ बताना है? Anyone? No lecture on Saturday? नहीं, EC का lecture होगा, बाकी सब lectures नहीं. Sure. So let's stop here. Sure. And thank you so much. You are attending this lecture on the holiday, official holiday. So just try to understand me because I don't have that much time. So whenever I'm free and you are also free, that time I'll take the lecture. Okay. And suppose I'm taking that much care कि Sunday पे lecture नहीं लगने. Okay. तो Sunday पे I'm thinking, but नहीं Sunday. Let's take a break Sunday. Monday to Friday, Monday to Saturday, I'm gonna take a lecture. I will inform you 1 day prior. ऐसे नहीं कि चलो 1 घंटे में lecture के join हो जाओ. अभी lecture के join हो ऐसे. You know that much time कि आज इतने बजे lecture है और tomorrow इतने बजे lecture है. I'll inform. At least 2-3 hours before the time. Okay. Sure. So we'll stop here and we'll meet on Friday and Saturday. Okay. Sure. Let's stop here. No question in the chat box. Let's stop.